everyone, so let's move towards our today's topic, which is Now, I will give you the introduction of the cerebrum. Then I have a special surprise for you. And what's the special surprise? I will tell you in after giving the introduction of cerebrum. Now, what is cerebrum? Cerebrum is the largest part of the brain, and it consists of two hemisphere. That is right cerebral hemisphere and the left cerebral hemisphere. Remember, cerebrum is also known as pallium. Okay, now in cerebrum and cerebellum, as you know, in cerebrum and cerebellum, the outer region is the gray matter, that is known as cortex, and the inner region is of white matter. Whereas in spinal cord, it's opposite, that is the outer region is white matter and the inner region is gray matter. But in cerebrum, like I said, inner region white matter and the outer region is gray matter. Outer gray region is also known as cortex. Okay, now surfaces. There are remember one more point, that is two cerebral hemispheres are connected by a commissure that is known as corpus callosum. Corpus callosum is consists of three parts. Anterior part is known as genu, posterior part is known as splenium, and the body is a body of the corpus callosum. Okay, so there are three parts. Now the cerebrum consists of sulcus and gyrus. Sulcus is basically the elevation and depression of the sulcus is basically the depression, and the gyrus is basically the area between two sulcus. Why these sulcus and gyrus are present on cerebrum? To increase the surface area of the cerebrum, and total surface area of cerebrum is 2000 centimeter square. Now first we will gonna talk about surfaces and the borders of cerebrum. The surface, there are three surfaces. Supralateral surface, okay, which is the curved area of the cerebral hemisphere, and it is present between the supromedial border and the infralateral border. Then we have medial surface. Medial surface is the surface which is connected with the which also consists of lateral ventricle, and it is connected with the opposite which is present on the opposite side of the cerebral hemisphere. Okay, so if we take an example of a ball and we cut the ball in two half in the center, in the center there is a straight surface, flat surface, and that flat surface is basically medial surface. And on the inferior side, an irregular surface is present, that is inferior surface. Inferior surface of cerebrum consists of three parts: anterior part, tentorial part, and orbital part. Okay, anterior part is also known as only known as anterior part. The posterior part is also known as tentorial part, and the another part is orbital part. Okay, now the borders, supromedial border होते हैं, inferolateral border होते हैं, और orbital border होते हैं. There are three borders, and orbital border is basically on the occipital side, and inferolateral border is on inferior and lateral side. Supromedial border is on the superior and medial side. Now moving towards the most important topic, that is sulcus and gyrus. For this, the surprise is, and like I said, I have a surprise for you. So the surprise is, I have made a video for you, special video, in which you will easily understand that the topic of sulcus and gyrus of cerebral hemisphere. So let's watch this video carefully, and after watching this video you will understand that how to draw sulcus, and where are the sulcus are present, where gyrus are present, and so on. ठीक है, sulcus gyrus आपको clear हो जाएगा. वही बातें इजी मेडिकल की जब आप बुक खोलेंगे उसमें भी यही बातें लिखी होंगी. बट रिमेंबर दैट थिंग, that first watch this video, then open easy medical book. Then if you open the easy medical book, the paragraph is exactly same. ठीक है, जो वीडियो में है पहले आप वो देखिएगा, ताकि आपको बुक में जब आप इजी मेडिकल की बुक खोलें तब आपको इजीली समझ में आ जाए. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो. सेरिब्रम की जो सल्कस हैं और जो गायरस हैं वो किस तरह बनते हैं मैं आपको बताता हूँ.
सबसे पहले आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो मैं आपको पहले लोब्स का बता देता हूँ इसी में से, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये है आपका फ्रंटल लोब, ठीक है, ये पूरा एरिया आपका फ्रंटल लोब है। फिर ये वाला जो एरिया है यहाँ से आ गया आपका यहाँ तक, ये वाला एरिया पूरा आपका पैराइटल लोब है। फिर जो ये एरिया है ये ऑसिपिटल लोब है और ये वाला एरिया टेम्पोरल लोब है, ठीक है। ये लोब जब आपको क्लियर हो गए तो फिर आपको गायरस और सल्कस याद रखने की आसानी जो है ना वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। वैसे है बहुत आसान, याद रखिएगा 2 सल्कस के दरमियान गायरस होते हैं। तो पहले आप सल्कस याद करें कि कौन कौन से सल्कस हैं, फिर गायरस आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। याद रखिएगा ये जो पूरा का पूरा आप जो डायग्राम देख रहे हैं ना, पूरी डायग्राम ये है सुप्रोमेडियल सरफेस, सुप्रोलैटरल सरफेस है, ठीक है ना। सुप्रोलैटरल सरफेस जो सरफेसेस ऑफ सेरिब्रम में है वो उसकी आप डायग्राम बेसिकली देख रहे हैं। नाउ मूविंग फर्दर, ये वाला जो यहाँ पे जो होगा सल्कस, यहाँ पूरा यहाँ तक होगा, ये पूरा का पूरा जो सल्कस होगा वो सेंट्रल सल्कस होगा, ठीक है। ये नोट्स ये जो इजी मेडिकल की बुक है उसमें भी ये डायग्राम मौजूद है, ठीक है, आप उसमें भी देख सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे भी देखते जाएं। सेंट्रल सल्कस की डायग्राम, सॉरी सेंट्रल सल्कस, सल्कस क्या है बेसिकली लाइन है, और गायरस क्या है 2 सल्कस के दरमियान का एरिया है। तो ये जो है ये सल्कस है, सेंट्रल सल्कस, सेंटर में है ना, जो फ्रंटल और पैराइटल लोब को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। नाउ सेंट्रल सल्कस के बाद हम फ्रंटल लोब में जो सल्कस और गायरस है उसकी बात करते हैं। तो ये जो एरिया है आपका क्या कहते हैं अपना सेंट्रल सल्कस के आगे, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक और सल्कस होता है, दैट इज़ प्री सेंट्रल सल्कस। अब ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर पार्ट है। अब होता ये है कि जो एंटीरियर पार्ट है इसकी तरफ थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो आपको प्री सेंट्रल सल्कस मिलेगा। तो सेंट्रल सल्कस और प्री सेंट्रल सल्कस के दरमियान जो एरिया होगा उसे क्या कहेंगे, प्री सेंट्रल गायरस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि गायरस क्या है, गायरस इज द एरिया बिटवीन 2 सल्कस। नाउ फ्रॉम प्री सेंट्रल सल्कस टू more sulcus are connected, that is one is superior frontal sulcus and another is inferior frontal sulcus। ये क्या करता है, ये फ्रंटल लोब को, फ्रंटल एरिया है ना, फ्रंटल लोब है, तो फ्रंटल लोब को फर्दर डिवाइड करता है इनटू गायरस। अब गायरस कैसे बनेंगे, बहुत सिंपल है, फ्रंटल लोब का है तो नाम फ्रंटल में नाम में फ्रंटल भी आएगा, अगर ऊपर है तो सुपीरियर होगा, दैट इज सुपीरियर फ्रंटल गायरस, बीच में तो मिडल फ्रंटल गायरस, और अगर नीचे है तो इन्फीरियर फ्रंटल गायरस होगा। तो ये फ्रंटल लोब कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पैराइटल लोब की। अब आपको पता है ये क्या है, ये है आपका सेंट्रल सल्कस। अब सेंट्रल सल्कस से पहले, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में, तो सेंट्रल सल्कस बीच में। अब उसके पीछे की तरफ जाएंगे ना, पोस्ट, PO पोस्ट और पोस्टीरियर मिलते जुलते वर्ड है, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि सेंट्रल सल्कस के पीछे जाएंगे, पोस्टीरियर साइड की तरफ जाएंगे तो पोस्ट सेंट्रल सल्कस होगा, और उन दोनों के दरमियान यानी सेंट्रल सल्कस और पोस्ट सेंट्रल सल्कस के दरमियान का जो एरिया है उसे कहेंगे पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। अब पोस्ट सेंट्रल गायरस पोस्ट सेंट्रल सल्कस से एक और सल्कस अटैच होता है जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट पैराइटल सल्कस, ठीक है। वो क्या करता है, वो पैराइटल लोब को 2 गायरस, पैराइटल लोब में 2 गायरस को सेपरेट कर रहा होता है, और वो पहला होता है सुपीरियर पैराइटल गायरस और दूसरा होता है इन्फीरियर पैराइटल गायरस। फ्रंटल लोब भी हो गया, पैराइटल लोब भी हो गया, बहुत सिंपल है। नाउ ऑसिपिटल लोब, इसमें कोई गायरस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम नहीं पढ़ते, एक होता है लेकिन हम उसको इतना प्रोमिनेंटली नहीं पढ़ते, ना पढ़ने की ज़रूरत है। अब आते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब साइड की तरफ होता है। अच्छा, अब होता ये है कि जो टेम्पोरल लोब है उसमें 2 सल्कस बनते हैं, ठीक है। ये एक आप सल्कस देख रहे हैं, ये जो लाइन जा रही है ना टेढ़ी मेरी, सल्कस टेढ़े मेरे ही होते हैं, सीधा कोई सल्कस नहीं होता। किसी अगर बुक में सीधा सल्कस बना हुआ है तो वो आप समझ जाए कि क्या उनका लेवल होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप यही देखें कि ये टेढ़ी मेरी जो लाइन है ये सल्कस ही होते हैं, ठीक है। अब इन 2 सल्कस के दरमियान गायरस होंगे। इन सल्कस के नाम क्या है, ऊपर वाले का नाम क्या है सुपीरियर सल्कस और नीचे वाले का नाम क्या है इन्फीरियर सल्कस। ये टेम्पोरल लोब में तो इनका प्रॉपर नाम क्या होगा, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस,
और इसका होगा इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस। ओके, नाउ अब इन दो सल्कस, बेसिकली ये दो सल्कस क्या कर रहे हैं, ये टेम्पोरल लोब को 3 पार्ट्स में 3 गायरस बना रहे हैं। ऊपर वाला पार्ट होगा सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडल टेम्पोरल गायरस और नीचे वाला इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। हो गया, टेम्पोरल लोब में तो वर्ड टेम्पोरल आ गया, ऊपर है तो सुपीरियर आ गया, बीच में तो मिडल आ गया, नीचे है तो इंफीरियर आ गया। सिंपल एज दैट। ऑसिपिटल लोब में गायरस और सल्कस होते हैं बट दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट। ये जो आपने पूरी की पूरी सरफेस देखी, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, सुप्रोलैटरल सरफेस की डायग्राम है, ठीक है। अब जो मीडियल सरफेस होती है वहाँ पे भी सल्कस और गायरस होते हैं। वो कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप जो व्यू देख रहे हैं ये है आपके, ये जो डायग्राम है ये मीडियल सरफेस के सल्कस और गायरस हैं। Now as you know the cerebrum consists of two hemisphere, that is cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere and the left cerebral hemisphere. And each cerebral hemisphere consists of two surfaces, inferior surface, medial surface and suprolateral surface. We have already talked about suprolateral surface. This diagram is of medial view, medial surface. So now the two cerebral hemisphere are connected with कमेजर दैट इज कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के 3 पार्ट्स होते हैं, जीनू दैट इज एंटीरियर पार्ट, बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम एंड द टेल। टेल इज नोन एज रोस्ट्रम नॉट, इट इज नोन एज प्लीनियम। ओके, नाउ कॉर्पस कैलोसम के नीचे क्या है, लेटरल वेंट्रिकल। इसकी बात हम अलग वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात करें कि इसमें सल्कस और गायरस कैसे बनते हैं। वीडियो बनाना ज़रूरी है इसलिए बनाइए। सेंट्रल सल्कस, ये सेंट्रल सल्कस नहीं है, तो ये क्या है मैं बताता हूँ। एक्चुअली द थिंग इज़ कि सबसे पहले होता है, आप इस तरह याद रखें, सिंगुलेट सल्कस। यहाँ से अराइज हुआ, और अराइज तो नहीं कह सकते, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। कॉर्पस कैलोसम के पैरेलल होता है, लेकिन हाफ पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोसम में जाके ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा, कॉर्पस कैलोसम और सिंगुलेट सल्कस के दरमियान जो गायरस होगा वो सिंगुलेट गायरस होगा। ये वाला एरिया प्री फ्रंटल लॉब्यूल होता है, ये आप रट लें, ठीक है, अच्छे से याद कर लें। ये वाला एरिया मेडियल फ्रंटल गायरस होता है। ऑब्वियसली फ्रंटल साइड पे फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है और ये टेम्पोरल लोब है। तो ये जो एरिया है, ये गायरस जो बन रहा है मेडियल फ्रंटल गायरस है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिंगुलेट सल्कस जहाँ पे एंड हुआ ना, इसके बाद बराबर में जो गायरस बनता है वो होता है प्री क्यूनियस गायरस, और ये जो एरिया होता है वो क्यूनियस गायरस होता है, ठीक है। इस यहाँ पर और भी गायरस होते हैं 1-2, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं टेम्पोरल लोब की तरफ, टेम्पोरल लोब की साइड यानी इंफीरियर साइड की तरफ। तो यहाँ पर जो सल्कस बनता है वो मेन सल्कस जो होता है वो कोलैटरल सल्कस होता है। ऊपर वाला एरिया लिंगुअल गायरस कहलाता है, आगे वाला एरिया अंकल बैठे हुए होते हैं आगे, क्योंकि अंकल जो है ना हमारे रिश्तेदारों में सबसे ऊपर लेवल पे होते हैं। हम अंकल जिसको कहते हैं वो बड़ी एज के होते हैं, दैट मीन्स वो बड़े हैं तो हम उनको आगे वाली सीट पे बिठा रहे हैं, इस तरह आप याद कर लें, अंकस। और पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस, ठीक है, ये एक और गायरस होता है जो यहाँ मौजूद होता है। बस इतनी सी बात है, इसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है। सो दिस इज़ द होल टॉपिक। ये मीडियल व्यू है और ये जो मैंने आपको दिखाया था ये है आपका सुप्रोलैटरल व्यू। Now as you have seen the video, so first part was about suprolateral surface के जो सल्कस और गायरस थे, और देन इट वाज अबाउट मीडियल सरफेस के जो सल्कस और गायरस थे। तो दोनों बातें, दोनों सरफेसेस में जो सल्कस और गायरस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नाउ we will talk about cerebral cortex, that is the gray matter and the outer matter of the cerebrum, but in the next part. Till then, take care and work hard, study hard, and good luck. Bye. Thank you so much. Bye.